ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स देता है। ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਆ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗੇ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਜਿਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ? डॉक्टर नवजोत कौर जी के साथ मेरी बातचीत हुई, उनको एक्सप्लेनेशन मांगा गया, उस एक्सप्लेनेशन का रिप्लाई उन्होंने दिया और उन्होंने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इसको रिप्लाई करके ये बात को क्लेरिफाई कर दिया है। मेरा इंटेंशन ना अपने पार्टी के ऊपर ना ये पार्टी के इसमें इल्जाम लगाना नहीं था। ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਚੱਟਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੇ 5 ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਪਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 14-15 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ 2027 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਾਇਰਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਵਾਟ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਏਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 32-34% ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਥੱਲਿਓ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਚਾਰਜ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ? बाबा साहब के संविधान के दिए हुए स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, व्यक्ति स्वातंत्र्य, इस अधिकारों की, मूल्यों की रक्षा अगर कोई दल करता है तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। ਜਿੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 1952 ਦਾ ਔਰ 1954 ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ? मैं सबसे बड़ा से बड़े व्यक्ति क्यों न हो, उसके माध्यम से अगर अनुशासनहीनता अगर हुई, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਮਿਲ ਪਾਟਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਦਲਵੀ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਦਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा में। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। ਦਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਆ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗੇ?
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਲੀਡਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ये जिस प्रकार का बयान ये कल मीडिया के माध्यम से ये मैंने भी देखा, और ये जिस तरीके से उसको ट्विस्ट, ये जब उनके तरफ से उनको पूछा गया कि डॉक्टर नवजोत कौर जी के साथ मेरी बातचीत हुई, उनको एक्सप्लेनेशन मांगा गया, उस एक्सप्लेनेशन का रिप्लाई उन्होंने दिया और उन्होंने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इसको रिप्लाई करके ये बात को क्लेरिफाई कर दिया है। मेरा इंटेंशन ना अपने पार्टी के ऊपर ना ये पार्टी के इसमें इल्जाम लगाना नहीं था। ये मैंने क्लियरली कर दिया था कि ये जो पार्टी, जो क्वेश्चन उनको पूछा गया था, उस क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या अकाली दल हो, इस पार्टी के नेता ने जब भी उनके साथ डायलॉग जब हुआ था, उनको ऑफर दी गई थी, हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, इसीलिए वो हम उनका फेस नहीं बन पाए। हमारी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ है और हम कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कभी भी ये बात हमने नहीं किया। इसी प्रकार का उन्होंने रिग्रेट करते हुए इसका क्लेरिफिकेशन उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से उन्होंने कर दिया था। ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਕਰ गए? जी, जिस प्रकार से मैंने उनका, देखो क्या है कि इंसानियत के तौर पर, एक लीडर्स के तौर पर, एक्टिविस्ट के तौर पर, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार ओहदेदार के नाते हमारा उनको पूछना फर्ज था। हमने जब उनको एक्सप्लेनेशन मांगी, उन्होंने उस प्रकार की एक्सप्लेनेशन सोशल मीडिया के जरिए से ये बात को उन्होंने कहा है। ये बात को जब कहते हैं, मैं ये बात अच्छी तरीके से, क्योंकि जो बातें कल उन्होंने गवर्नर को मिलने के पहले, वो जब गवर्नर को मिलने जाने के पहले भी मेरी मुलाकात उन्होंने की थी, और उन्होंने गवर्नर को मिलने के बाद जब ये बात सामने आई है, उससे उन्होंने उसका क्लेरिफिकेशन दिया है। मुझे नहीं लगता है कि कल की बातों को लेकर अभी सवाल उसमें ये खड़ा है, होना चाहिए। ਕਰਨ ਬੁਰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਕਰਨ ਬੁਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਰਨ ਬੁਰਜ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਰਨ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਨ ਬੁਰਜ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਕਰਨ ਬੁਰਜ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ? ਫਿਰ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ? नहीं, ये जो बात करण बुर्ज वाली बात है, मैं अभी आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ। मैं आज का स्टेटमेंट मैं न जानता हूँ ना कुछ नहीं। जो कल उनका जो बयान था, जिसके बारे में मेरे पास कुछ जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, मैं यहीं पे था, मैंने उनको एक्सप्लेनेशन मांगा था। उन्होंने मेरे साथ भी और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी इंचार्ज भूपेश बघेल जी के साथ भी इसका क्लेरिफिकेशन उन्होंने किया था, और आपके खुद के सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात को उन्होंने उठाया था। आज क्या बात हुई है इसके बारे में मैं जानकारी नहीं हूँ, लेकिन जो जानकारी मेरे पास आई है, आज का भी एक्सप्लेनेशन हम मांगेंगे। और मैं आपके जरिए से बात बताना चाहता हूँ, पार्टी, कांग्रेस पार्टी अनुशासनता के साथ चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी का इतिहास जो है, ये आप गांधी नेहरू जी के कार्यकाल से आप देखोगे, इस पार्टी को बहुत ही डिसिप्लिनरी पार्टी कही जाती है। ये पार्टी में ना कभी ऐसे बातों को जिक्र किया जाता है, न ये बातें होती है। ये जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का लिए, अब कल उनके बयान को लेकर उसका क्लेरिफिकेशन क्या था पता नहीं था, इन्होंने उनका बयान आ गया, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, जो प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के, उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उनको बात नहीं, ये तो फिर गलती ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ,
ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਜਿਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ कमांड ਨੂੰ 350 ਕਰੋੜ रुपया दे सुनील के? जाखड़ सरी का इतना झूठा व्यक्ति जो पार्टी के साथ गद्दारी करके, जिस पार्टी ने उस व्यक्ति को सब कुछ देने के बाद, जो पार्टी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एक तोड़ने वाली, ये जातिवादी जो इस ऐसे पार्टी के साथ उन्होंने रिश्ता बना दिया, और आज वही लोग कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको शर्म आनी चाहिए। जब पार्टी के अंदर थे, पार्टी के माध्यम से सब कुछ पा लिया, और आज लोग ये बाहर जाकर जो पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने ये बात को समझना चाहिए। उनकी जो पंजाब के लोग उनकी हैसियत को जान चुके हैं, आज उनकी हैसियत क्या है ये पता चल गई है। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है कि जो विचारधारा के साथ चलने वाली पार्टी है, ये त्याग और सत्याग्रह के चलने वाली पार्टी है। यहाँ पर ऐसे बातों को किसी को भी सहारा नहीं दिया जाता है। जो लोग नाराज होते हैं, जो अपनी खुद को कुछ पाने के लिए जब अपनी आस बैठकर वो देखते हैं कि हमें कुछ मिलता है क्या नहीं मिलता है, अगर उस पीरियड में अगर कुछ नहीं मिलता है तो बाहर जाकर ऐसे बयान करना, ये अभी कुछ लोगों का एक प्रैक्टिस हो चुकी है। दलवी साहब, पंजाब दे विच एक चर्चा है, एक नैरेटिव है कि भगवंत मान तो कांग्रेस दे लीडर डरते हैं कि भगवंत मान ने बहुत सारे कांग्रेस दे लीडरां दीयां कमजोरियां रखियां, फाइलां बना के रखियां, उस तो डरते हैं। कुछ दे करप्शन दीयां फाइलां ने, कुछ बंदियां दीयां। फिर जो तुहाडे अपने लीडर नवजोत कौर सिद्धू ये गल कहंदे ने फिर टीवी चैनलों के उत्ते कि ये तो भगवंत मान दीयां चप्पलां चट्टदे आ, भगवंत मान ने इन्हां दीयां कमजोरियां फड़ के रखियां होईयां ने, भगवंत मान दीयां पैरां 'च डिगदे आ, चप्पलां चट्टदे आ। तुहानूं की लगदा, तुहानूं लगदा नहीं कि इलैक्शन तो 1 साल पहले कांग्रेस दी इमेज नूं जीरो करता तुहाडी अपनी लीडर ने? नहीं, मैं ये शब्द बहुत सख्त इस्तेमाल किए उन्होंने। ये जो बयान है, जो जिस तरीके की बात आप कह रहे हो ना, तो मैंने मेरे आपके माध्यम से ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ। मुझे ये पहले टटोलना होगा कि उन्होंने किस प्रकार का बयान दिया है, उसमें सत्यता क्या है, तब जाके मैं आपको इसके बारे में बात कर सकता हूँ। कल की जो बात उन्होंने कही थी, ये फिक्स तौर पर उन्होंने खुद ही उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया था। आज की बात के बारे में जानकारी मेरे पास नहीं है। अगर ऐसी बयानबाजी अगर की होगी, मैं इसके बारे में जानकारी लूंगा और ये जानकारी लेके हम आगे बढ़ेंगे। कि रविंदर दलवी पंजाब के को इंचार्ज हाई कमांड नूं ये रिपोर्ट देंगे कि नवजोत कौर सिद्धू ने किसी तरह का इनडिसिपलिन किया है? ये बयान पार्टी के लीडरां के खिलाफ मीडिया च दिते हैं, इस ते कोई डिसिपलिनरी अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए है? तुसी भी ऊपर रिपोर्ट कर दो, क्या तुसी रिपोर्ट दोगे इस बारे? जिस प्रकार की बात आप कह रहे हो, मुझे पहले उसकी सत्यता को जानना होगा। ये पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर एक का अधिकार हम जानते हैं, हर एक का यहाँ पे अपनी बात रखने का अधिकार उसको है। ये पार्टी में सबकी सुनाई जाती है। ये पार्टी को पहले जो बात आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, ये मुझे उसको जानना चाहिए, उसकी सत्यता कितनी पर की है। अगर इसमें सत्यता होगी, इसके बारे में उनको एक्सप्लेनेशन मांगेंगे और जो भी बातें आगे चल के हम करने जाएंगे वो करेंगे। क्या पार्टी नवजोत कौर सिद्धू को ये सवाल कर सकती है कि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के पंजाब के प्रधान रहे, उन्होंने प्रधान बनने लिए कितने पैसे दिते? नहीं तो ये जर-तर की बात में जब तक की बात मैं नहीं करना पसंद करूंगा। मैं ये बात फैक्चुअल चीज है, फैक्चुअल चीज है। आज की बात में करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की बात आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, जो ये बात को मैं पहले सत्यता उसकी ये करूंगा और उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। कल जो बात की बात मीडिया के माध्यम से मैंने सुनी थी, उसका एक्सप्लेनेशन खुद ही उन्होंने दिया और उन्होंने रिग्रेट करते हुए इसको मिसअंडरस्टूड किया गया, मेरे उनके बात को गलत तरीके से पेश किया गया, ये उन्होंने बात रखी थी। एक होर चर्चा बहुत पंजाब दे विच हो रही है कि पंजाब दे लीडर ऑफ ओपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बतौर प्रधान ये बदले जा रहे ने। हर रोज पार्टी दे अंदर लॉबिंग हो रही है, पार्टी दे वड्डे लीडर पर्दे दे पिछे खिंचतान कर रहे हैं एक दूजे दी और सेंटर तक हाई कमांड तक ये लॉबिंग की जा रही है। बदलाव हो रहे ने वड्डियां कुर्सियां दे विच, की कहना चाहोगे? जिस प्रकार से 2027 के चुनाव के लिए पार्टी का फोकस
2027 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने रखा है। हम्म कांग्रेस पार्टी यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रधान, जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट है अमरिंदर राजा वरिंग जी के नेतृत्व में, हम्म और हमारे सीएलपी के लीडर हम्म जो हमारे प्रताप बाजवा जी के नेतृत्व में हम्म यहाँ की पार्टी एक आगे बढ़ रही है। हम्म हमारा फोकस, हमारा एजेंडा ये पंजाब को बचाने का एजेंडा है। पंजाब के किसानों को बचाना है, पंजाब के युवाओं को बचाना है, पंजाब के व्यापारियों को बचाना है। पंजाब के जिस तरीके से यहाँ पे पंजाबियत को खराब करने का काम यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, उससे बचाने का काम हम कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि पिछले महीने में ही हमने सर्जन संगठन अभियान के तहत पूरे संगठन को मजबूत करने का काम हमने किया। हम ये कर रहे हैं, हमारा प्रयास ये निरंतर है। बूथ स्तर की कमेटियां हम बनाए हैं, ब्लॉक स्तर की कमेटी हमने बनाए हैं, जिला स्तर पर हम नए जिला प्रधान लगाए हैं, और जो लोगों की आवाज किस प्रकार से बनकर एक विचारधारा की लड़ाई हम कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इस सरकार के खिलाफ, जो सरकार यहाँ पर आज पंजाब को और पंजाब के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे नशाखोरी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे करप्शन बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे दिन दहाड़े फिरौती मांगी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो चुकी है। ये हालात पंजाब के लोग समझ चुके हैं। पंजाब के हर कोने से आवाज एक ही आ रही है कि जनता ये चाहती है 2027 के चुनाव में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। दलवी साहब, कांग्रेस की समस्या है कि कांग्रेस इन्नी अंदरों धड़ेबंदी आ, इन्नी पार्टी हुई है कि एक लीडर ते एक स्टेज ते कांग्रेस दे जे 5 लीडर बड़े नजर आ जान ते ये खबर बनती है कि कांग्रेस अज इकट्ठी नजर आई। तो लगता कि जी चर्चा है कि पंजाब के 5-4 बड़े जिहड़े लीडर ने कांग्रेस के, वो सारे सीएम की कुर्सी के बारे ही सोच रहे हैं, और जे पार्टी इन्नी अंदर धड़ेबंदी हैगी आ, वो एक दूजे को बर्दाश्त भी नहीं करते लीडर, तो फिर यह जिहड़ा तुसीं एजेंडा दस रहे हो, ये तां ही संभव होएगा जे पार्टी इकट्ठी चलेगी, और इकट्ठी चलना पार्टी का अजे तक ते आम चर्चा है कि वो असंभव है। ये बहुत अच्छी बात आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास अलग अलग फेसेस है। कांग्रेस पार्टी के पास ही इतने सक्षम नेता है जिसको पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। ये पार्टी सौभाग्य है कि पार्टी के अंदर इतने बड़े नेताओं को यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने उनको स्थान दिया है। ये दूसरे किसी पार्टी में नहीं है, ना कोई किसी का नाम भी वो जानते हैं। हमारे पार्टी में तो जिन्होंने अपना ग्रास रूट से लेकर प्रदेश स्तर पर अपने कार्य के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से, अपनी दी हुई जिम्मेदारी को अच्छा निभाते हुए कांग्रेस पार्टी का वो नेतृत्व करते आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान बनानी है। और हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि राजनीति में उसको एक अच्छा सा स्थान मिले। लेकिन पहली हमारी प्राथमिकता ये है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पे बनानी है, इसके लिए सांघिक रूप पर एक यूनिटी बताकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे और जनता को एजेंडा के मुताबिक, हमारा जो लोगों का एजेंडा जो है उसको फिक्स हमने कर दिया है और उसको आगे बढ़ाएंगे और हम सरकार बनाना चाहेंगे। तुहाडे ही कांग्रेस के पुराने साथी कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि अकाली बीजेपी का अलायंस होना चाहिए, हुंदा या नहीं हुंदा कल नूं पता नहीं, पर जे हाइपोथेटिकली मान लो जे अलायंस हो जाता, 2 पार्टियां इकट्ठियां हो जांदियां, तुहाडे सामने बहुत बड़ी फोर्स खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तुहाडे लई इंटरनल चैलेंज भी उन्ना है और ओपोजिशन का चैलेंज भी उन्ना वड्डा हो जाएगा। एक पासे सरकार है और दूसरे पासे जे अलायंस करके 2 वड्डियां पार्टियां आ जांदियां, एक रीजनल एक नेशनल। तुहानूं की लगता है, तुहानूं लगता कांग्रेस लई सिचुएशन बहुत टफ हो जाएगी पंजाब च? जिस प्रकार से ये लोग आज बयान देकर खुद की ही अपनी पार्टी का स्थान वो बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का मुकाबला करने के लिए आज किसी भी दल के पास ताकत नहीं है। इन लोगों को, ये आज भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हम आम आदमी पार्टी को कहते हैं, अकाली दल और भाजपा, ये पंजाब में कई सालों से एक होते हुए उन्होंने सरकार दी है। जनता इनको नए तरीके से देखना नहीं चाहती है। जनता ने इनका अनुभव ले चुका है, किस प्रकार से ये सत्ता में आकर पंजाब को बर्बाद करने का काम इन्होंने किया, पंजाब खराब करने का काम किया। इसीलिए तो जनता कांग्रेस पार्टी के ऊपर ट्रस्ट करती है और हमारी पार्टी के नेताओं के माध्यम से हमने
जो संगठन सर्जन अभियान के माध्यम से आज नई तरीके से जिला प्रधानों को हमने अधिकार देने की बात की है। आज कोई भी ये दल नहीं है कि जिसमें ये संगठन के तरीके से लोगों की, ये तो सेंट्रल लीडरशिप करना चाहते हैं। आज दिल्ली के नकारे हुए लोग पंजाब में आकर पंजाब का नेतृत्व कर रहे हैं। ये पंजाब के भगवंत मान को कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। जो झूठे वादे करते हैं, जो इसने बुरे तरीके का बाढ़ भारतवर्ष में किसी भी प्रदेश ने नहीं देखा होगा। 96,00,000 एकड़ के इसमें बाढ़ आने के बाद यहाँ का किसान बर्बाद हो चुका है। आज किसानों को मदद देने की बात नहीं कर रहे, युवा परेशान है। आज यहाँ का युवा आज अपने प्रदेश को छोड़कर वो बाहर जा रहा है नौकरी की तलाश में। यहाँ पे कई व्यापारी अपने व्यापार बंद करने जा रहे हैं। उनको जान की तकलीफ हो रही है, जान माल की सुरक्षिता वो चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुकी है। मैं बार बार यही बातों को, ये जब लोगों के बीच में जाता हूं तो यही लोग चाहते हैं कि कोई भी हालात में हम यहाँ पर ये सरकार को सत्ता से नीचे खींचकर कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी का यही प्रयास है कि सभी नेताओं के साथ में लेकर ये अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने हलके में, अपने जिले में इनका एक अपना स्थान है जो कांग्रेस पार्टी के सभी वर्कर इनको चाहते हैं। और ये साथ मिलकर ही यहाँ पे सरकार बनेगी। और जो सरकार बनाने के लिए जो हमारे पास पर्याप्त जो नंबर्स आएंगे, ये नंबर्स मिले हुए जो हमारे विधायक दल होगा, विधायक दल ये तय करेगा। और पार्टी की हाईकमांड, कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, आदरणीय राहुल गांधी जी हो, इस बात का, और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, ये सब मिलकर इसको बात का डिसीजन लेंगे। ये बात आज लेकर हमारे बीच में ये लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी एक लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी है। पार्टी का मकसद ये है कि आम आदमी पार्टी के सरकार को नीचे खींचना है। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਾਂਗਰਸ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਪਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 14-15 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ 2027 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਾਇਰਾ, ਇੰਨਾ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਵਾਟ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਤੋਂ सत्ता तक, सरकार तक आ जाए? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तरन तारन बाई इलेक्शन हो या पिछले जो भी बाई इलेक्शन होते हैं, सरकार के माध्यम से जो धक्काबाजी हुई है, आज मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव का जिक्र भी आपके माध्यम से करना चाहता हूं। अमृतसर सरीके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी से सीटें जीती। लुधियाना के इसमें हमने जब अपोजिशन को ये करके हमने वहां पे अच्छे नंबर प्राप्त किए गए। फगवाड़ा में हमने मेजोरिटी प्राप्त की। हमने जिस प्रकार से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जनता ने कांग्रेस पार्टी को के रूप में कांग्रेस पार्टी को सहयोग उन्होंने किया, आज वही कांग्रेस पार्टी की वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये आम आदमी पार्टी के सरकार ने बनने नहीं दी। वहां पे उन्होंने धक्केबाजी कर धक्केशाही की और वहां पे उन्होंने अपनी सरकार बनाई। आज भी जब बाई इलेक्शन हुआ है, कि ये बाई इलेक्शन लुधियाना का बाई इलेक्शन हो या आपका तरन तारन का बाई इलेक्शन हो, पूरी कांग्रेस पार्टी एक जगह आकर सभी नेता तगड़े होकर इस बात को उठाते रहे। लेकिन दुख इस बात का रहा कि जो मुद्दे, लोकल मुद्दे वहां पर थे, कि यहाँ पे टेररिस्ट का मुद्दा था, यहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी, उसका मुद्दा था, गुंडा राज चल रहा था, दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो रही थी, वहां पे बेरोजगारी थी, ये किसानों का मुद्दा था, करप्शन का लोकल लेवल पे ये था। ये मुद्दे के ऊपर चुनाव नहीं हुआ। इन लोगों ने वही हमारे बीच जो हमारे कई नेताओं के ये बात को, स्टेटमेंट को गलत तरीके से पेश करके गुमराह करने का काम किया। ये और वो तरन तारन में धक्के के साथ उन्होंने चुनाव जीता है। ये उनकी जीत नहीं है। कांग्रेस पार्टी, पर धक्का ते अकाली दल ना भी होया, वो ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਪਾर्टी से दूसरे नंबर पे आ गई। तो इसके पहले तरन तारन की सीट कभी कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों में नहीं जीती थी। जब ये 2017 का चुनाव जब हुआ था,
वो 2017 के चुनाव में एक ही बार कांग्रेस पार्टी की सीट हमने वहां से जीती थी। हम वहां पर अग्निहोत्री के माध्यम से हमने जीत हासिल की थी। इसके पहले कहीं आप रिजल्ट उठाकर देखो, तरन तारण की सीट कांग्रेस पार्टी ने कभी जीती नहीं थी। लेकिन हमें उम्मीद थी, हम हार जीत से पराजित से हम डरने वाले लोग नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा के साथ लड़ने वाली पार्टी है। हमारा ये फर्ज बनता था, हमारा ये कर्तव्य बनता था कि हम सही यूनाइटेडली सभी नेताओं को लेकर हमने अच्छे कैंडिडेट को वहां पे उतारना, और उस कैंडिडेट के माध्यम से हमने सरकार को ये जो लोग है, लोगों के मुद्दे है, उसको उठाकर सरकार के सामने रखने का काम किया। वहां पे कई मीटिंगों में आम आदमी पार्टी के जो जो मिनिस्टर्स वजीर वहां पे आए थे, उनका भी विरोध प्रदर्शन उनके कार्यालय के सामने किया गया। ठीक, मेरे आखिरी एक दो सवाल। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 32-34% ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਥੱਲਿਓ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਚਾਰਜ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो एक्सरसाइज की गई थी, 2022 के चुनाव में जो सरकार के माध्यम से जो अच्छे डिसीजंस जो हमने ये पंजाब के लोगों के लिए ले गए थे, वो सही तरीके से वो पॉलिसीज, वो एक्ट और सही वो डिसीजंस लोगों के बीच जाते हुए हमको कहीं गलतियां हमारे तरफ से हुई थी, वो सही तरीके से लोगों के बीच हम लेकर नहीं जा पाए थे। उसकी कमियां ये थी कि हमारे पास संगठन उस प्रकार का नहीं था। हमारे उस संगठन की और वो कमियां को दूर करने का काम हम ये करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में 2027 के चुनाव में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी, इस बात को लेकर ये हमारा एजेंडा तय हो चुका है। ठीक, कि ऑन इलेक्टिव मेरिट जो लोगों के बीच जाकर लोगों के साथ दुख और दर्द और सरकार के खिलाफ का आवाज को बुलंद करने का काम जो भी हमारा वर्कर किया करेगा, जमीनी ताकत को बताएगा, जमीनी स्तर पर उसकी स्ट्रेंथ को वो शो करेगा, उसी को लेकर पार्टी मैदान में उतारेगी और उसी के जरिए से एक जनता की आवाज बोलकर कांग्रेस पार्टी वहां पर अपना प्रतिनिधि उसको दिया करने का मौका देगी और हम उसको सरकार में लेके आएंगे। बात रही दलित की, दलितों के आवाज को मजबूत करने की बात आपने कही। कई सदियों से आपने देखा जाए इस देश के अंदर की और पंजाब के अंदर जो भी मौका दलितों के हित में अगर किसी दल में किया है, बाबा साहब अंबेडकर जी का इतिहास भी उठाकर लिखिए, बाबा साहब के विचार को आगे लेकर जाने वाला कोई अगर दल है, बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका देकर संवैधानिक स्तर पर उनके माध्यम से संविधान का निर्माण करने का मौका उनके पाकर उनके दिए हुए संविधान की रक्षा करने की बात हो, बाबा साहब के संविधान के दिए हुए स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, व्यक्ति स्वातंत्र्य, इस अधिकारों की मूल्यों की रक्षा अगर कोई दल करता है तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। जिन्नी हिस्ट्री च तुसी चले गए उस दौर की एक रेफरेंस भी है कि 1952 ਦਾ ਔਰ 1954 ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਂग्रेस पंजाब, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि मान लो जिस वक्त बाबा साहब ने चुनाव लड़ा था, बाबा साहब किस दल में थे? मैं आपको सवाल पूछूंगा, बाबा साहब किस दल से चुनाव लड़ रहे थे? इंडिपेंडेंट। बाबा साहब जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, बाबा साहब की खुद की पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे थे, बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने ये न्योता दिया था कि बाबा साहब आप हमारे साथ आके चुनाव लड़ो, लेकिन नहीं तो हरवा देंगे। तो नहीं हरवा देने की बात नहीं थी। बाबा जब एक दल दूसरे दल के साथ मिलकर
एक अपना दल का एजेंडे के साथ चुनाव लड़ता है तो अपने दल की बात होती है। बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का लक्ष्य इस देश के दलितों को नहीं, ये देश के जिसको आवाज नहीं, उन लोगों को आवाज देने का काम जो बाबा साहब ने किया था, उनकी लड़ाई, उनका मिशन अगर कोई दल अगर चलाता है तो वो कांग्रेस पार्टी चलाती है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपना अंतिम स्पीच दिया था। जब अंतिम स्पीच में बाबा साहब ने कहा था, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एक डिसिप्लिन पक्ष पार्टी का, दल का, जो पार्टी में इस संविधान सभा के इसमें मेजोरिटी होते हुए जिन दल के सहयोगियों ने, दल के सदस्यों ने मुझे ये संविधान लिखने का यहाँ पे मौका दिया, मुझे सहयोग किया, उसके उस डिसिप्लिन संगठन का और नेताओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये बाबा साहब का वाक्य है। ਕਿਸੇ ਦਿਨ बाबा साहब ने ये ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦਾ। मैं आखिरी सवाल, बहुत अच्छी बात है कि आप जब भी बाबा साहब की लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। बाबा साहब मैं जरूर करना चाहूंगा इस समय बाबा साहब के विचार के साथ अगर कोई दल अगर कोई आगे बढ़ रहा है, ये बाबा साहब का संविधान की अगर कोई दल रक्षा कर रहा है, बाबा साहब के दिए हुए संविधान है, इसलिए देश इतनी अखंडता से, मजबूती से इस देश के अंदर सभी तबकों को, सभी वर्गों को न्याय दिलाने की बात, उनकी हिस्सेदारी की बात हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ये पंजाब एक ऐसा सूबा है जो पंजाब के सूबे में जो दलितों का जो परसेंटेज है, जो दलित भाईचारों का जो परसेंटेज है, आज पूरे देश के हिस्ट्री में आज हमने पिछली 2022 में भी आज एक दलित भाईचारे का एक व्यक्ति सामान्य कुटुंब से लेकर बन के आया था, उसको रिप्रेजेंट करने का मौका इसी दल ने दिया था। सुशील कुमार शिंदे जी हो राष्ट्रपति के तौर पर, मैं कभी कितने बात हो, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगा। ठीक, लेकिन ये यही दल है जो एक कांग्रेस पार्टी जो ये दलितों के हितों की रक्षा करने वाली पार्टी। आखिरी सवाल दलवे साहब, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੈ। नहीं, ये बात सही है कि मैं कुछ बातें भूतपूर्व काल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आज आपको के माध्यम से ये बात को मैं सही तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में कितना भी बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो और छोटा सा व्यक्ति की वर्कर क्यों ना हो, अगर वो इनडिसिप्लिन करेगा, अगर अनुशासनहीनता उसके माध्यम से अगर की गई, उसको उसकी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी सख्त से सख्त कदम उठाते हुए डिसिप्लिनरी एक्शन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, चाहे लीडर कोई होए। मैं सबसे बड़ा से बड़े व्यक्ति क्यों न हो, उसके माध्यम से अगर अनुशासनहीनता अगर हुई, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी पंजाब में 2027 का जो हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे को पूरा करने के लिए लोगों की आवाज बनते हुए इस आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट सरकार को सत्ता से नीचे खींचने के लिए, और ये बीजेपी, अकाली, आम आदमी पार्टी के तीनों दलों को विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी यहाँ पे अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया दलवे साहब, दैनिक सवेरा ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਵਿੰਦਰ ਦਲਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੋ ਤਲਖ ਬਿਆਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਨੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।